bring some of that Diwali cheer, which we need very, very badly at this point, Mr. Kedia. Yes, of course. And I think Diwali had been cheering us for last 3 years, So this is time to cool down a little bit, to start your next Diwali again. So it's a sensible market. Yeah. You think it's justified, the kind of cuts that we have been seeing? Or is there a real worry? Is this a cool off because of the kind of run-up, or is there a worry here, not everything well with the economy, the corporate results not looking as good as they should? No, maybe whatever worries are there, that could be temporary. Like people are talking about some slowdown in the economy and cyclical slowdown or whatever. That is temporary. Nobody is talking about a slowdown in the economy on the larger scale. So that is good for the market. I think whatever happening is the market. As I said, that it is return of a sensible market. That euphoria is actually dying down or cooling off. So that is always good for the market. I really feel that we are gearing up for next bull market, you can call it, or next bull run, you can call it. It might take some time, but this is what we are preparing for. Yeah, and stable returns any day over volatile returns. But summer 2081, do you think we could see a rally of 20%? 81 months going forward. Hanji. Next 1 year? Should be, I think. But before that, I think market will consolidate further. This is what I feel. So I think we're done with our gains for calendar year. Would that be fair to say? And then restart maybe Jan 2025? So as I said, it will cool off further. It might cool off further. This is what I feel. Yeah. And because index has not fallen down so much. Individual stocks might have gone down 30%, 40%, 25% or whatever. But index still is near its high. So I think it needs to cool down further, and the sentiments needs to cool down further. What people were expecting that aaj raat ko utho, kal subah 20%, 25%. So that time has gone for the time being. Again this will come. Maybe next year, maybe after 6 months or so, it will come again. Because I have noticed one thing, that there has been a structural change in the pattern of bull market and bear market in India, which I have said on various platforms. So now bull markets are longer and bear markets are shorter. So you call it a bear market, or you call it a reaction, or you call whatever it is. I always say that we are neither in a bull market nor a bear market, we are in a stock market, Yeah. So all those theories of 20% down, 25% down, I don't buy those theories, and because so many stocks has already fallen 30-40%. So according to the theory, they are into a bear market, according to that theory. That's true. This is what I feel. Okay. विजय जी, ये सब होएगा. कुछ एक शेयर तो और समझा. Let's start. Let's get into the mood. भी बाकी सब तो चलते रहेगा. Correct. एक शेयर तो और हो जाए. बाद में I'll ask my question. But एक शेयर तो और हो जाए. कुछ तो. बोले वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं कठिन. एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद. पिला दे साकिया, ये भी बोल लेते. पैमाने के बाद. अच्छा. Yeah. So this is applicable to our bull market, or upswing. Yes, indeed. Yeah. Okay. So, so you made a very valid point. Okay, at some point of time, maybe 6 महीने के बाद, we'll probably hit these markets again. I heard you say that there is a cool off possible. क्या ये इकोनॉमी से लिंक्ड है? डू यू थिंक दैट बिकॉज द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यू गो टू किराना शॉप्स, दे आर ऑल सेइंग शायद धंधा थोड़ा मंदा है, मे बी क्विक कॉमर्स इज डूइंग द धंधा एंड द अदर्स आर नॉट. इज दिस लिंक टू द इकोनॉमी और इज दिस जस्ट वैल्यूएशन सीइंग अ कूल ऑफ? According to my limited knowledge, it is only because of the adjustment into the market. Okay. This is what we are giving excuses. वो बहाना बताते हैं कि अरे इसके ये कारण हो गए, आज बारिश हो गई, आज इसके लिए लेट हो गया, ट्रैफिक जाम था, चुनाव हो गया. ये सब इससे बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों ने देख ली भाई. हम लोग सब वो बीजेपी का ये देख लिया, बजट देख लिया, सीतारमन जी का आशीर्वाद देख लिया हम लोगों ने. और अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते तक पूरी दुनिया गिर रही थी, ये हफ्ता सडनली वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए. वो भी होता है, वो हर रोज वो तो ये यहाँ का ऐसा ही सिस्टम है कि बाद में हम बोलते रहते इसके कारण था, उसके कारण था. कारण ये था कि तू थका हुआ भाई, तो बहुत दौड़ लिया, तो बहुत थक गया अभी. तो थोड़ा सा जमीन पे आ जाना. वो बादल में उड़ने वाला टाइम नहीं है. थोड़ा सा प्लीज टेक अ ब्रेक. कंसोलिडेट. ओके, सो कंसोलिडेशन एंड बाद में
upticks. We are setting the stage for the next bull market, you're saying. This is what I feel, because मेरा माइंड हमेशा उल्टा चलता है. You know, मैं 6 महीने से मेरे को लग रहा है कि मार्केट डूबेगा. And none of my stocks has performed in last 6 months. माने अब कोई भी ऊपर नहीं आया है मेरे को. In the last 6 months, one second, let me come back to this. In the last 6 months, Vijay Kedia is unhappy with his portfolio? No, I'm not unhappy. I'm just saying that it did not participate with the rally in the market. And I'm happy about it. Not देखो यार, अगर आप रैट रेस में अगर दौड़ के पहले नंबर 1 भी आ जाओगे तब भी आप रैट ही कहलाओगे. बराबर है आपको. तो आपको अपने अलग पहचान बनानी है. अपने वो चीता अपना अलग ही दौड़ता है, वो झुंड में नहीं दौड़ता है भाई वो बात ही है. तो वो समझ में आना चाहिए आपको लाइफ के अंदर में. तो ये तो चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, वो सब चलेगा. ये सब तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे. तो मेरे को खाली बोलने का मतलब है कि पहले क्या है, इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो मिड कैप स्मॉल कैप 3 गुना 4 गुना 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो गए. इंडेक्स वाज नॉट परफॉर्मिंग. नाउ इंडेक्स इज परफॉर्मिंग लाइक. तो ऑल दिस मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स एंड अदर स्टॉक्स हैव रिएक्टेड. सो आई थिंक कि ये भी थोड़ा दिन और ऐसे चलना चाहिए. मे बी सम ऑफ द शेयर्स माइट हैव मेड द बॉटम आल्सो. दिस इज व्हाट आई फील. सम ऑफ द स्टॉक्स. सो इट्स ए स्टॉक पिकिंग मार्केट. यू कैन नॉट जनरलाइज इट कि यार ये बुल मार्केट है, बेयर मार्केट है. सबका अलग अलग बुल और बेयर मार्केट है. So all these stocks of yours that haven't done as well as you'd have liked in the last 6 months, I'm assuming they've also corrected a little bit in October. Have you added more to these stocks, or are you waiting? No, I'm not waiting. I'm enjoying because I don't have money to invest. Everything is fully invested. Fully invested. Yeah. Oh, so it's wait and watch the party unravel. तो But अगर किसके पास पैसा है, do you think putting money in right now is good idea कि रुकना चाहिए? नहीं, अगेन इट डिपेंड्स. स्टॉक कौन सा उठा रहे हो आप? हाँ, तो ये मैं तो कुछ नहीं उठा रहा हूँ. मैं तो अभी खाली मिठाइयाँ उठा रहा हूँ. मैं तो दिवाली के, क्योंकि मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ इसके लिए. मतलब ये थोड़ा बहुत मैं अपना ट्रिकिंग करते रहता हूँ. माइट हैव सोल्ड सम ऑफ माय स्टॉक्स, यू नो, हियर एंड देयर. फिर वो कोई दूसरा ले लिया. आई बॉट सम चाइनीज स्टॉक्स, नॉट चाइनीज स्टॉक्स, चाइनीज म्यूचुअल फंड. हाँ, ETF, चाइनीज ETF. तो मेरे जैसे ऑफ कोर्स आई सोल्ड सम ऑफ माय, कुछ मैंने स्टॉक अपना बेचा है, कुछ मैंने हल्का किया, किसी से एग्जिट किया है छोटा मोटा. एंड आई बॉट सम चाइनीज ETF एंड ऑल. थोड़ा नैस्डैक ETF है आपके पास? नहीं, नैस्डैक ETF नहीं. उतना दूर का सोच नहीं. बाजू में नेबर्स के साथ. नहीं, in terms of नेबर्स एंड मी. चाइना वो भी कुछ कम नहीं. In terms of rotational play, केडिया जी, अब कहाँ पर देखना चाहिए लोगों को? क्या ये भी समय है कि आप अपने पोर्टफोलियो को देखें जहाँ काफ़ी रनअप हो गया, वहाँ से प्रॉफिट निकाल कर अब दूसरे सेक्टर्स, ये रोटेशनल मार्केट हो गया है? तमन्ना जी, मेरे को क्या लगता है ना कि जैसे अभी ये शायद टाइम ऐसा है कि आप सोचेंगे कि ये बॉटम बन गया, हो सकता है मार्केट और गिर जाए. क्योंकि पहले भी ऐसे होता था, जैसे मेरे को लगता है टॉप हो गया लेकिन मार्केट अलग टॉप हो गया. तो ये इंडेक्स के अगर हिसाब से अगर मार्केट को अगर हम सोचेंगे तो हम, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाएगा ये. तो जैसे मैंने बताया, इंडेक्स इज नॉट इट्स डिसेप्टिव. इट डजंट गिव यू ए प्रॉपर, यू नो, इट्स नॉट इंडिकेशन ऑफ द टोटल मार्केट एंड ऑल. वो सट्टे का ज़्यादा आपको वो बताता है, इंडिकेटर है. जो निफ्टी का जो घटना बढ़ना है, सेंसेक्स का जो घटना बढ़ना है, इसमें सट्टा ज़्यादा 99% के अंदर में सट्टा है इसके अंदर. रोज इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ना कोई सेंसेक्स के शेयर्स ले रहा है, सेंसेक्स के शेयर बेच रहा है. वो तो 90% आप फ्यूचर ऑप्शन ही कर रहे हो ना भाई उसके अंदर में. तो वो रियल उसका इंडिकेटर नहीं है. मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लगेगा कि हाँ ये शेयर अच्छा है, इसका बॉटम हो गया, वो हो सकता है और भी बॉटम और गिर सकता है. लेकिन दैट इज ओके. दिस इज व्हाट यू शुड इन्वेस्ट prepared for this. यार मेरा कोड है यार, देयर आर ओनली 2 पीपल हु नो टॉप एंड बॉटम इन द मार्केट. वन इज गॉड एंड अदर इज अ लायर. तो वो बोला हाँ मैंने लिया था बॉटम पे, मैंने देखो ऐसे बॉटम बनाया था, मैंने ऐसे किया था, वो सब किया था वो. तो ये तो कोई प्रभु को भी नहीं मालूम है कि टॉप और बॉटम किधर है. बात ये है. विजय जी, एक सवाल मुझे करना है. आई थिंक हम लोग अग्री करेंगे, द कंसेंसस व्यू फॉर नेक्स्ट ईयर इज कुछ भी कैपिटल मार्केट स्टॉक हो तो खरीदना चाहिए. बी इट एक्सचेंजेस, बी इट वेल्थ, बी इट एनीथिंग दैट इज नॉन लेंडिंग. मेरा ओनली कंसर्न है कि व्हेन द होल हर्ड इज सपोर्टिंग वन थीम, द रिस्क ऑफ फेलियर इज ऑल्सो वेरी हाई. आपको लगता है कि कैपिटल मार्केट्स इज अ गुड प्ले, और डू यू फील लाइक थोड़ा संभल के चलना चाहिए यहाँ पर? नहीं, संभल के तो हर समय चलना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट 2 तरीके से होते हैं. आप संभल कर चल रहे हैं लेकिन दूसरा संभल कर नहीं चला, वो भी आकर आपकी गाड़ी को ठोक सकता है. तो ये तो फिर प्रकृति पर आपको छोड़ना पड़ेगा. ये
मेरे को ऐसे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो बात बराबर है। जनरली दिस इज व्हाट वी टॉक इन द मार्केट दैट एवरीबॉडी राइट्स माने सेल इन वन बोट, तो बोट डूबने वाली है। हाँ। ये जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर में क्या होता है ना, एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट, लेकिन कितने आदमी उसको इंप्लीमेंट करते हैं? कितने आदमी जब मंदी आती है तो उसके अंदर में इन्वेस्ट करके पड़े रहते हैं कि नहीं भी मेरे को तो ये आइडिया ठीक लगी 5 साल के लिए, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। लोग तो 5 मिनट में निकल जाते हैं यहाँ पे। हाँ। तो मेरे को भी ऐसे लगता है, जैसे मैं कई बार बोला कि जैसे एक नया इंडिया पैदा हो रहा है। जैसे पहले हम रोटी कपड़ा मकान बात करते थे, अभी रोटी कपड़ा मकान और डेटा आ गया। अभी रोटी कपड़ा मकान डेटा और सिप आ गया। सिप बोलो या स्टॉक मार्केट बोलो या जो भी बोलो। तो मेरे को लगता है ये स्टोरी 10-15 साल की है। जब तक इंडियन इकोनॉमी में अपटिक है तब तक स्टोरी शेयर बाजार की है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म लीजिए, चाहे NSE हो, BSE का शेयर्स हो या CDSL हो, ये वो कोई भी हो, या ब्रोकिंग के हो, एसेट मैनेजमेंट, मेरे को लगता है ये सनराइज सेक्टर है। ऐसा मेरे को भी ऐसे लगता है। कौन से सेक्टर्स में अभी दूर रहने का समय आ गया है? क्या IT उनमें से है? IT आज बहुत ही खराब कर रहा है, वहाँ काफ़ी प्रेशर बन रहा है। ऑटो, IT, ऑटो, क्या ये जो सारी कहानियां, इनसे थोड़े समय तक दूर रहना है? बैंक्स? नहीं, बैंक्स मेरे को तो सबसे, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके जो नंबर्स आए हैं मेरे को तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। जो मैंने बोला कि कई शेयर्स लगता है बॉटम बना रहे होंगे, मेरे को पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे लगता है। मेरे को ऐसे कि वो कई बैंक्स माने, ये अगेन जनरलाइज नहीं है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपको जाना पड़ेगा। So what are the top PSU banks you are liking right now? नहीं, देखिए लाइकिंग का मतलब है, मेरा अभी तक कोई इसके अंदर में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे रडार पे जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आपको अपना अपना सब करना पड़ेगा भाई। मेरा अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंटरव्यू जाने के बाद गाड़ी में बैठ के ले सकता हूँ, मालूम नहीं है मेरे को। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। फॉर फेडरल बैंक के नंबर देखिए आप कितने अच्छे हैं, प्राइवेट बैंक है वो, और लेकिन उसकी वैल्यूएशन वो पब्लिक सेक्टर के जैसे, और इंडसइंड के कितने खराब थे दिए जाते हैं। हाँ, तो ये बोले स्टॉक स्पेसिफिक आपको होना चाहिए। तो इंडसइंड बैंक का खराब है बिकॉज उसका माइक्रो फाइनेंस वगैरह का लेकर वो सेक्टर पेन के अंदर में। तो ये एकदम स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, नए आदमी के लिए मुश्किल है समझना। अगर हम बात करेंगे बैंक और वो जाकर आपको अगर वो इंडसइंड ले लिया कि 20% घट गया, तो मालूम नहीं आप कहाँ इंडिया जाएंगे, सिंध जाएंगे, कहाँ मालूम नहीं उसका। तो ये वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, राइट। या It is important. The way you said that your portfolio hasn't gained, but you're not perturbed, which is great. A lot of people who might have invested in defense stocks, they must be perturbed कि 6-9 महीने से stocks haven't moved at all. Now, is this the necessary consolidation in a good sector? Would you use, if you had spare capital, let's say, would you choose defense as a sector to deploy some funds right now, or will you wait? No, I don't think I will deploy. For the simple matter that I do not buy shares which becomes trendy in the market. Okay. मैं उन शेयर्स को जनरली मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन इसका एक्सेप्शन हो सकता है कि मैं कल ले लूँ, आज ले लूँ, अलग बात है। एज ए मैं वो सेक्टर नहीं लेता हूँ, मैं बिटन डाउन सेक्टर लेता हूँ, जिसको लोग भूल चुके हैं या जिसको लोग रिटर्न डाउन कर दिए हैं कि ये तो कभी ऊपर आएगा नहीं। मैं वैसे सेक्टर के अंदर में काम करता हूँ। डिफेंस बहुत रनअप किया है, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना डिफेंस के शेयर्स हो गए हैं। 30-40% डाउन भी अगर हो गए हैं तब भी वो 10 वाला 5 गुना पे हो गया, या 3 वाला 1.5 गुना। मतलब है तो ये ऑलरेडी एक फैशन, और वापस जब आएगा फिर लोग डिफेंस के अंदर में घुसेंगे, फिर उसमें अनाप शनाप फ्लक्चुएशन आएगा। तो मैं इन सेक्टर में अभी, इनका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन फ्यूचर इज डिफरेंट, कंपनी इज डिफरेंट, स्टॉक प्राइस इज डिफरेंट, सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड। वो तीनों को एक साथ अलाइन, कई ऐसे शेयर्स हैं वी हैव सीन इन द पास्ट जो 10-10 साल तक कंपनी बढ़ती रही है, शेयर्स परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि उसका पहले डिस्काउंटिंग इतना ज्यादा हो गया था, या कई कारण यहाँ पर होते हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं अभी डिफेंस में काम नहीं करूंगा। इस संवत में आपका सबसे अच्छा पिक और सबसे खराब पिक क्या रहा है? क्या रहा? क्योंकि आगे का तो हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि कौन से आप। नहीं, मैंने बताया ना आपको बैंक के शेयर्स, देखिए। हाँ। आपने बताया, आपने पूछा, हमने बताया। तो हम और पूछेंगे, बट जो योर बेस्ट कॉल एंड योर वर्स्ट कॉल ऑफ द लास्ट संवत। तो मेरा लास्ट संवत का बेस्ट कॉल बाय ग्रेस ऑफ गॉड, जैसे तेजस नेटवर्क मेरा कॉल था, वो अच्छा किया। तो लेकिन लास्ट संवत में हो सकता है, अगर लास्ट संवत माने अगर 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में कोई ज़्यादा नहीं, बड़ा डबल ही हुआ होगा मेरे ख्याल से। लेकिन 3 साल का अगर आप देखोगे तो वो 20-30 गुना हो गया वो। अगर 3 साल का कोविड के बाद का अगर टर्म जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से 30-35 गुना हो गया। तो वो ऑफकोर्स मेरे लिए मून शॉट रहा वो, बाय ग्रेस ऑफ गॉड।
तो उसी के कारण मैं बोला कि शेयर्स नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े 6 महीने के ठीक है। अंदर में, चलो ठीक है यार, खाना पीना चल ही रहा है तो विजय जी अगर आपके पास I love this. खाना पीना चल रहा है. But what was the worst one? आपने पूरा नहीं किया. तो ये Worst वर्स्ट वन, मेरे 2 शेयर बहुत वर्स्ट रहे मेरे। और जैसे एक रहा रेप्रो इंडिया, वो आपने ठीक है। बेच दिया कि अभी भी होल्ड कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी वो छूटती किधर है, वो लत के जैसे है वो। So Repro India. रेप्रो इंडिया वो परफॉर्म ही नहीं किया, वो 4 साल 5 साल में परफॉर्म नहीं किया। तो वो समझिए जो भाव वो 4-5 साल पहले था 500 रुपए का भाव, घूम फिर कर वो लौट के बुद्धू घर पे आए, वापस वहीं का वहीं भाव वो पड़ा हुआ है। ऐसे ही मेरा क्या विभव ग्लोबल है, वो मेरा शेयर्स, मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में। तो मेरा 1 क्वार्टर चौथाई पोर्टफोलियो तो परफॉर्म ही नहीं किया ये बुल मार्केट में 2 साल में 3 साल में। वो भी 3-4 साल पहले वही भाव था, 300, 350, 400, आज भी वही 300 रुपये का भाव है। तो इस तरह 2 शेयर्स है मेरे कॉस्ट प्राइस से ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं है ना। आपको जब रेस में आप दौड़ रहे हो तो आप पहले क्या दौड़ रहे थे उससे मतलब नहीं है, आपका खिलाड़ी दूसरा क्या दौड़ रहा है, आपको उसके साथ में आपकी रेस को समन्वय करने का भाई। तो विजय जी अगर आपके पास अगर अभी पैसा होता, कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, बहुत आप पैसा कुछ है। तो बहुत पैसा स्टॉक में है, आप क्या खरीदते? तो अगला तेजस हमें बताइए। नहीं ऐसा क्या है ना मैडम, अगला तेजस बता के नहीं आता है, मैंने मालूम नहीं पड़ता है। जब मतलब आपने किसी को तो आय किया होगा ना? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं रॉन्ग हो सकता हूं, मेरे को चाइना में बड़ा बूम लगता है मेरे को। मैं पूरी चाइना दुनिया- हांगकांग, तो हांगकांग हाँ, वो ETF इज गुड। एक ही समझिए शेयर्स या जो भी है, तो मैं तो ETF ले सकता हूं, क्योंकि Correct. उससे ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता हूं। Correct. मेरा इंडिविजुअल शेयर्स भी वहां पर लेने का मन है, ठीक है, लेकिन हो सकता वो उसमें 2.5 लाख का लिमिट है, वो मेरे पास LRS नहीं है। पे ले सकते हो, हाँ, सकते तो हो 2.5 लाख का लिमिट है, तो इस बोल का वो होता नहीं। तो मेरे को चाइना में मेरे को लगता है कि ये अगला, देखिए मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है ये बात। Obviously. हाँ, क्योंकि सब बड़े बड़े इकोनॉमी सब उसको राइट ऑफ कर रखे चुके हैं। हैं। अभी अचानक एक बार में जरा सा, चाइनीज लोग क्या है ना, वो उनका दिमाग ऐसा है ना, मैं तो देखा हूँ उनको क्लोजली, 15 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं उनका। Really, yeah? हाँ, वहाँ जब वो तूफान आता है ना, तो वो छोटा मोटा तूफान नहीं आता है, वो वर्ल्ड स्केल का तूफान आता है, और चाइना सारा काम वर्ल्ड स्केल का करता है। मेरे को लगता है चाइना इस सदी का फर्स्ट वंडर ऑफ 21st सेंचुरी है चाइना। सो अगर आपके पास 100 रुपए होता, आप 80 रुपए अभी हैंडसिंग पे लगाते? मैं लगा सकता हूँ, मेरा ऐसा मन आता है कि अगर मेरे पास जो भी कैश हो, पर थोड़ा control मेरा करना थोड़ा सा पड़ता है। हिम्मत नहीं होती है, confidence- जिगर चाहिए। नहीं, जिगर तो बहुत अपने पास में, दिल है, जिगर नजर सब है। ये एक नीरज का वर्ड है, 4 दिन से मैं जिगर बोल रही हूँ, नीरज का फेवरेट वर्ड है, जिगर होना चाहिए। तो वो एक गुजराती है ना, इस बोल के वो जिगर कभी मैं जहाँ पे भी यूज कर सकती हूँ यूज कर लेती हूँ जिगर। नहीं, जिगर अपने में बहुत है, शेयर बाजार में जिगर का और क्या काम है पैसे भी मैडम? है तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, एक तो चीज- हांगकांग में 80 रुपए आप लगाएंगे? मैं लगा सकता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी मैंने एक रीजनेबल सम मैंने लगाया है, ETF के अंदर में लगाया, मैं और भी मेरा मन है लगाने का, लेकिन अभी चूंकि उसका उतना डेटा उतना उसका वो Limited. अपने पास में नहीं रहता है, चाइना का डेटा को अब मालूम नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो थोड़ा सा वो रखता है। फिर भी मैंने एक रीजनेबल सम लगाया, और मैं और भी लगाने का मेरा मन। तो आप जो बोलते हैं तो अगर जरा सा ठीक चले ना तो मैं चाइनीज म्यूचुअल फंड Buy Chinese on Murat trading. Yeah, no. I want to one clarification here. Please do not go out and invest in China ETFs because Vijay Kedia is saying so. His time horizon and his risk appetite will be very different, or might be very different than yours. So please keep that in mind. Yeah, his- That is 100%. for That- everything Yeah, that he is disclaimer saying. goes for everything. And that is a fraction of my Especially because investment. it's very difficult to analyze Chinese investments. That's why I was saying that. नो, इट्स वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। मैं मालूम नहीं है, वो रातों रात 20% बढ़ जाता है, रातों रात 20% गिर जाता है। दिस इज नॉट एट ऑल फॉर द जिनका माने हार्ट तो थोड़ा बीट थोड़ा सा माने जिनका वो कमजोर है, इन द सेंस जो इतना फ्लक्चुएशन नहीं देखते, उनके लिए एकदम नहीं करना चाहिए। वो हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है। Yes. और लेकिन मेरे को रिस्क में मेरे को मजा आता है, इस बोल कर मैं कर रहा हूँ, और एक फ्रैक्शन ऑफ माई पोर्टफोलियो Fraction है, of your portfolio, और वो agreed. इस बोलकर मैं वो रिस्क ले सकता हूँ, और I- मैं but I निकल have भी one more सकता हूँ question. कभी भी, Yeah. और मैं कभी भी निकल सकता हूँ। Right, मैंने agree. इंटरव्यू खत्म होने के बाद मेरे को मन में आया, बोला And यार, ETF है ना, agree, लो agree. कॉस्ट है, एंट्री एग्जिट का स्ट्रेस नहीं है। I mean, हाँ, तो ये there is समझना चाहिए reason to दर्शक। buy China and Hong Kong. I think I agree with Vijay Kedia over here. हाँ, 80 रुपए नहीं डालती, but of course allocation long term China you can't ignore. Okay, I have one more question though. Autos. Everybody is hating that sector right now. You've known in the past, आपके auto picks बहुत अच्छे रहे हैं. क्या आपको, do you like auto currently in this dismal phase?
ऑटो भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जैसे हो सकता है 6 महीना परफॉर्म ना करे, मे बी। मेरे पास इतना इकोनॉमिस्ट के जैसे मेरे पास डेटा नहीं है, उन्हीं को सुनकर मैं मेरी अपनी आइडिया मेरे को बनाता हूँ। लेकिन ये 2 साल इतना बड़ा बूम आया ना ऑटो के अंदर में, आप देखिए जिस चीज़ में भी ऐसा ट्रेंड फैशन वैशन आता है ना, उसमें अल्टीमेटली कंसोलिडेशन उसके अंदर में होना का ही होना है, बराबर है। तो जिस लैम्बोर्गिनी बोलता है 2028 तक मेरी गाड़ी बिक गई, अरे हलवाए गया है 2028 तक गाड़ी बिक गई यार यहाँ पे, तो क्या मजाक करे, यहाँ पर औरतों को यहाँ को फ्री बस में चढ़ा रहे हैं हम लोग वहाँ पे दिल्ली के अंदर में, कि आपको फ्री बस राइड आपको यहाँ पर, और 28 तक वहाँ पर तो बोलते मेरी गाड़ियाँ ही बिक गई वहाँ पे। तो ये जो यूफोरिया है ना, ये जो शेयर बाजार का पैसा है वो उसी में घुस रहा है, लग्जरी के अंदर में या ऐसे एस्पिरेशन में या हाई क्लास रियल एस्टेट के अंदर में। ये कूल डाउन होना जरूरी है, ये होगा, नहीं होगा तो बफून बने यूफोरिया बनकर होएगा। विजय जी, एक क्विक क्वेश्चन, थोड़ा इक्विटी से हटके, ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट अराउंड गोल्ड। गोल्ड हैज आल्सो डन वेरी वेल, मतलब बीटन निफ्टी ऑन बेटर देन नैस्डैक रिटर्न्स। आपको गोल्ड पे क्या लग रहा है, और रियल एस्टेट पे घर खरीदना चाहिए अगर कोई इंसान घर देख रहा है कि नहीं, घर एक घर तो जरूर खरीदना चाहिए, आपका खुद का घर तो खरीदना ही चाहिए, बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में तो कोई रिटर्न कभी मिलता नहीं है। आप उसमें कोई रिटर्न 2-3% का रिटर्न कुछ उसके अंदर में आता होगा, और खर्चे बहुत लगते हैं स्टैम्प ड्यूटी। क्योंकि हिस्टोरिकली इक्विटी रैली के बाद रियल एस्टेट रैली शुरू होती है। ये टाइम थोड़ा साइंस आए थे अर्ली दिस ईयर, बट दे डोंट थिंक कैरी फॉरवर्ड हुआ था इतना, बट रियल एस्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट अवॉइड। गोल्ड मेरे को नहीं लगता है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप उससे कोई रिटर्न अगर पैदा करते हैं, जैसे कमर्शियल समझिए रियल एस्टेट है, उसके अंदर में आपको एक यील्ड आता है 7-8% तो उससे अच्छा तो रीट ही इन्वेस्ट कर दो। हाँ, रीट कर सकते हो, लेकिन रीट में एक लिमिटेड यील्ड आता है। कमर्शियल एस्टेट में बढ़ने की संभावना रहती है कि अगर आप उसका एप्रिसिएशन अगर जोड़ो, 7-8% का यील्ड जोड़ो, 5% का वो जोड़ लो, लेकिन वो 10-15 साल में आपका उसका रिटर्न आएगा। तो 10-12% का क्यूमुलेटिव आपको रिटर्न दे सकता है। और एसेट एलोकेशन है, एक सेफ्टी है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट हाई रिस्क एसेट से निकलकर एक मैं ऐसे रिस्क में जाता हूँ। और गोल्ड और आप बार बार गोल्ड पूछ रहे, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हीरे पसंद है। हाँ, वो हीरे तो खरीदना ही नहीं, हीरे प्रॉब्लम है हीरे के क्योंकि लैब डायमंड सब खराब करने वाले। हाँ, लैब वाले डायमंड भी है, लेकिन मेरे को क्या लगता है तो माना जी, लैब डायमंड का जो ये चल रहा है ना, ये भी आस्ते से कूल डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड ज्वेलरी चलती थी, फिर इमिटेशन ज्वेलरी आ गई, दोनों का मार्केट अलग अलग हो गया। इमिटेशन ज्वेलरी आपको 500 रुपए में बिक जाएगी, अभी मालूम नहीं आपका ये 2.5 लाख का लग रहा है, लेकिन अभी कहाँ से कनॉट प्लेस से लिया, कहाँ से थैंक यू सो मच। आपने पहना है तो 2.5 लाख का लग रहा है बाबा, वो सोचो तो। ओके, दिस इज कॉल्ड रियलिटी चेक फ्रॉम विजय केडिया। तो मेरा मतलब इमिटेशन ज्वेलरी का मार्केट देखिए अलग हो गया, उसने गोल्ड को कभी प्रभावित नहीं किया। अगर आप देखो उसके कारण गोल्ड मार्केट प्रभावित हुआ गया, जो आदमी इमिटेशन पहन रहा है इमिटेशन पहन रहा है। तो मेरे को लगता है इसमें कंसोलिडेट होगा लैब डायमंड और रियल डायमंड के अंदर में। लेकिन मेरे को डायमंड में, आप डायमंड छोड़ो, गोल्ड मैं मेरी वाइफ को बोलते हैं डायमंड जो भी तेरे पास छोटे मोटे हैं, जो भी मालूम नहीं नकली है कि क्या है, उसको तू बेच बांध दे, उसको तू गोल्ड में इन्वेस्ट कर। गोल्ड मेरे को एक डेटा मेरे पास में किसी ने बताया, गलत सही तो फिर कोई इकोनॉमिस्ट बताएंगे, गोल्ड का 800 साल का गोल्ड ने रेट तोड़ा है, हाई तोड़ा 800 साल का। तो ये अभी इसका मेरे पास में पूरा डेटा नहीं है, एक खाली हेडलाइन है मेरे पास में कि एक कोई 1250 या उस समय जो गोल्ड का भाव था वो डॉलर को हटा दें, खाली डॉलर के एब्सोल्यूट टर्म्स या जो भी उसको क्या टर्म्स बोलते हैं, तो डॉलर वो गोल्ड तोड़ा। तो मेरे को गोल्ड लगता है अगले 10 साल में हो सकता है 5 गुना हो जाए। ओके, और सिल्वर भी। वन क्वेश्चन, जो सारे आईपीओज अब आ रहे हैं, आईपीओज की काफी बूम रही है 2024 में, आईपीओज अब कुछ आ रहे हैं, इनमें कुछ भी है जो आपको एक्साइटिंग लग रहा है? आईपीओ में आप डाल रहे हैं? नहीं, मैं आईपीओ में पैसे अभी तक जहां बात कर रहा हूं, तब जहां तक मेरे को याद आता है मैंने आईपीओ में कोई पैसा नहीं डाला। और अब मेरे को वो क्या कहना, उसमें पता लगाना मुश्किल है उसके अंदर में, अगर फ्रॉड अगर है, प्राइस डिस्कवरी तो हाँ वो मुश्किल है। और वो पहले ही आजकल प्राइस पहले ही आ जाता है, सब मर्चेंट बैंकर वगैरह मिलके वो सब पहले से ही उनका प्राइस। एनएसई के शेयर्स नहीं है? हाँ है ना, तो वो तो अनलिस्टेड है। हाँ, स्विगी आईपीओ की बात की है। हाँ, तो एनएसई में मेरा इन्वेस्टमेंट है, 13-14 स्टार्टअप में मेरा स्विगी इन्वेस्टमेंट में है है आपका पैसा? He's a venture capitalist. What do you think? Now we know who to call for a unlisted conversation also. आईपीओ की बात हो रही है। हाँ, नहीं तो आईपीओ आपको पसंद नहीं है, और जो आने वाले उनमें आप वेट करेंगे। मैं उसको देखता भी नहीं। स्विगी को नहीं देखा आपने? स्विगी भी होगा? नहीं, मैं तो अभी तक मंगाया भी नहीं है स्विगी से। अच्छा, आप जोमेटो फैन हो? अभी तक मंगाया भी नहीं। एक में हो स्विगी से। मैं अगेन वही बोलता, जो उसको पहले से डिस्कवर्ड हो गया है ना, अपॉर्चुनिटी। हाँ, अपने को कोलंबस बनने का, अपने को वहां पर जिसने डिस्कवर नहीं किया वो ट्राई होना, कोशिश ही होनी चाहिए। जो डिस्कवर नहीं हुआ उसको डिस्कवर करने का, जो डिस्कवर्ड है उसको अभी क्या करने का। तो कोलंबस के मैप पर अभी क्या है?
वो एक आइडिया तो दीजिए जो आपको लग रहा है कि अनडिस्कवर्ड टेरिटरी है। बस कुछ ही लोग देख रहे होंगे, हमें किसी को पता नहीं चलेगा। को छोड़ के, सीक्रेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र को छोड़ के वो हमने सुन लिया। नहीं, ये बहुत सस्ता शेयर्स है और ये सेफ शेयर्स है, इस बोलकर टीवी पे अपने माने ये बातें करते हैं, रिकमेंडेशन तो नहीं है किसी में। नॉट अ रिकमेंडेशन, बट स्टिल लेट मी कम बैक एंड आस्क यू व्हाट इज द वन फ्रेशली डिस्कवर्ड आइडिया और वन आइडिया दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट। नहीं, मैं सच आपको बताऊं, कभी ऐसा मेरा दिमाग में ऐसा कोई फ्रेशली डिस्कवर्ड कोई आइडिया नहीं है, और क्योंकि अभी मेरा भी दिमाग संतुलित नहीं है। पिछले 6 महीने के अंदर में जो भी मार्केट में हुआ, कुछ शेयर्स मैंने बेचे, कुछ नए शेयर्स मैंने ले लिए, फिर मेरे को लगा कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा तप है टेम्पटेशन में अपने माइंड को कूल रखना। मैं 10 में से 8 बार कूल रखता हूँ, ये सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 बार आउट ऑफ द चला जाता हूं, तो टेम्पटेशन में कुछ ले लेते हैं कि अरे मैं गलत हूं, हो सकता हूं ये निकल जाएगा। तो मैं उसको जल्दी, मेरे में खाली ये एक थोड़ा सा ये है, मैं उसको रेक्टिफाई जल्दी कर लेता हूं। मेरे को लॉस काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को अच्छी नींद आती है। अगर मेरे को लगा मैं गलत दिशा में चला गया, वहां से निकलने में मेरे को बहुत खुशी होती है कि आगे का रास्ता मैंने बचा लिया, इतना मेरे टाइम वेस्ट किया। तो अभी मेरे दिमाग में कोई ऐसा संतुलन नहीं है। जैसे ये शेयर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इनको 10 साल के लिए ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, ये मेरे को नहीं मालूम है। ठीक है, तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं है। आपको कंजम्पशन का क्या लग रहा है? अभी रूरल कंजम्पशन पिकअप हो रहा है, अर्बन कंजम्पशन इज प्रॉब्लमेटिक, इसमें आपका कोई एक्सपोजर है? मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है और इसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया मेरे को। कभी रूरल, कभी सिटी, और कभी ये वो लोग ऐसे आंकड़े देते रहते हैं कि अभी ये खराब है, अभी वो खराब है, ऐसा है वैसा है। तो मेरा इसमें कोई आइडिया नहीं है। एक चीज़ मेरे को जरूर लगती है कि एशियन पेंट्स का जैसे एक स्टेटमेंट आया था मैनेजमेंट का कि हमको उनको नहीं दिख रहा है कि इकोनॉमी इस तरह से जो ग्रो कर रही है, वो उनका स्टेटमेंट था कि उनको कुछ डाउटफुल लग रहा है कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, जो भी 7.5 या जो भी हम बातें कर रहे हैं, उसने कुछ एक क्वेश्चन रेज किया उन्होंने कि ये कैसे लग रहा है, उनको नहीं दिख रहा। ऐसे कुछ और भी कंपनियां ऐसा बात बोल रही है। कंपनी कमेंट्री थोड़ी सी अब केयरफुल रही है, तो इसको सुनकर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो हमें दिखे हैं Q2 में, उस पर आपका क्या असेसमेंट है? क्या ये अब क्लियर हो रहा है कि जो वैल्यूएशंस हैं वो जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं काफ़ी सारी कंपनियों को? नंबर्स तो ऐसे ही बता रहे हैं, जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कंपनियों के। देखिए, कंपनी हैविंग ईयर टू द ग्राउंड ना, जिसको हम बोलते हैं। मैं एयर कंडीशन मेरे कैबिन में बैठ के कुछ भी डेटा लगा रहा हूँ, वो दूसरी बात है। वो एशियन पेंट्स के इतने डिस्ट्रीब्यूटर है, इतना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इतने वेंडर्स हैं, वो जो बातें बोलते होंगे, या दूसरी कंपनियां जो इनका इतना बड़ा उनको जो उनका ज़्यादा महत्व है, वो ऐसा बता रहे हैं। और नंबर भी जो आए हैं और अर्निंग भी आई है, वो भी बड़ी मिक्स्ड आई है। कुछ एक कंपनियों की बहुत अच्छी आई है, कुछ अच्छी। अब इंडिगो के नंबर ही देख लो आप, फॉर एग्जांपल। आप सोच सकते हो इंडिगो कैसे लॉस कर सकता है भाई? कौन सा बोलता है कि क्रूड के कारण हो गया, उसके कारण हो गया? मेरे को तो ऐसे लगता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। अब अगर आप देखो, लेकिन नंबर तो नंबर ही है। तो ये बड़ा विचित्र चीज़ है, इसको पकड़ना और समझना ये बड़ा स्पेकुलेटिव है ये पूरा। तो ऐसे जरूर लग रहा है कि कुछ तो स्लो डाउन चल रहा होगा, ऐसे लगता है। अब ये दिवाली में एक चीज़ अभी रिसेंटली हुई है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट यूज दिस करेक्शन टू बाय इनटू स्टॉक्स दैट हैव बीन बीटन डाउन। इट कुड बी इंडिगो पर आज 2 नोट आई हैं, बोल रहे हैं कि भैया येस देयर वाज अ प्रॉब्लम, मे बी Q3 इज एन इशू, बट लॉन्ग टर्म इट इज स्टिल द लीडर, इंडियंस आर फ्लाइंग, सो ऑन सो फोर्थ. Some notes on banks like IndusInd, etc. and stuff like that. Would you believe that there will be further lower levels into stocks that have already corrected as well? मतलब जब ये the lowering tide sinks all boats along with it. तो but I heard you say that there are some stocks which have already corrected 30-35%. वहाँ पे तो bear market already आ गया है. क्या वहाँ पे और correction देखने मिल सकता है? संभावना है? So that what I'm trying to tell you is this, Neeraj, we don't know whether they are going to correct more or not. But like as I said, that suppose if I have money and if I have to buy some shares which is on my radar and which has corrected 20-30%, I would certainly buy. But keeping this thing in my mind that it may correct 20% more so from will you spread out your investment SIP, horizon? like spread out, then it is individual's choice how do they buy the shares. अगर मेरे पास में 100 रुपया है फॉर एग्जांपल, एंड सपोज मेरे को कोई शेयर्स अगर आज लेने का मेरे को एकदम जच रहा है मेरे को, मैं वो 100 रुपया का शेयर्स ले लूंगा. आप ले लोगे. एंड आई विल वेट फॉर मार्केट टू फॉल 20%. दैट डज नॉट मैटर टू मी बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दैट चांस कि मैं नहीं लिया और ये हो गया या ये बढ़ गया, मेरे हाथ से निकल गया. तो मैं क्या करूंगा, 20% ऊपर लूंगा. क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को अगर समझो 400 ग्राम खाना है तो मेरे तो खाना ही है.
चाहे वो उसके लिए मैं चाहे मैं गाजर खा लिया या पनीर खा लिया या भिंडी खा लिया या मछली खा लिया, खाना तो मेरे को 400 ग्राम चाहिए मेरे को। एक सेक्टर जिस हैजंट पार्टिसिपेट बट अर्निंग्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, एंड मे बी अ लिटिल बिट ऑफ द चाइना प्ले, स्पेशलिटी केमिकल्स। आपको लगता है क्योंकि ये सेक्टर ने 3-4 साल से पार्टिसिपेट नहीं किया है, करेक्शन भी अभी और कितना हो सकता है सर? सम ऑफ दी स्टॉक्स अभी इंसान खरीद सकता है क्योंकि नेक्स्ट 2-3 साल के लिए मे बी द टर्न अराउंड इज हियर। सुदर्शन या और कुछ भी। इनका सुदर्शन एक्सपोजर इज इट? He used to have. I don't know the current status. आई हैव। बाय मोर ऑफ सुदर्शन? नहीं, बहुत प्राइसी है और अभी दूसरा कंपनी खरीद रहे हैं वो लोग बाहर से। वो कुछ उस कंपनी का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा है अभी कंपनी के अंदर में, तो हाई रिस्क हाई गेन वाला बात है। कमिंग टू योर पॉइंट की, और कितना गिर सकता है, शेयर बाजार में ये थ्योरी नहीं चलती है यहाँ पर। हाँ, वो गिरने वाला और भी गिर सकता है यहाँ पे, तो ये कितना बढ़ सकता है जैसे इसका कोई थ्योरी नहीं है, कितना गिर सकता है ये कभी नहीं रखना चाहिए, और गिर सकता है। तभी मैं बोला हर समय 20% गिरने के बाद भी अगर आपको लेना तो और सोचना 20% गिर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स ओवर वैल्यूड होते हैं, अंडर वैल्यूड होते हैं यहाँ पर, तो वो ऐसे ही चलते रहता है यहाँ पर। कमिंग टू योर पॉइंट, केमिकल देन इट्स अ वास्ट फील्ड। केमिकल में कई चीजें केमिकल में आता है, कोई रॉ मटेरियल है, कोई क्या है क्या नहीं है, तो मेरे लिए वो समझना मुश्किल है। मेरे पास में खाली एक शेयर है, जैसा अभी नीरज ने बोला, वो मैं होल्ड कर रहा हूँ। 7 साल से मेरे पास, 8 साल से या 9 साल से मेरे पास में है, तो बस मैं उसी के साथ में जीवन बिता रहा हूँ। It's an important point. So okay, he has a holding patience of 9 years, 8 years as well. A lot of you Yeah. might not. So please bear that in mind. And और he's मैं created 10-12 साल something उसको well, वॉच right? करके उसमें फिर उसके सोल्यूशन बाद, केमिकल लिया था। exactly. 10 साल तक वेट किया और अभी 10 साल तक होल्ड कर रहा हूँ। I think this is a key takeaway of this interview. That look at the study that Vijay Kedia puts in, and then the patience that he has to hold on to something like that. But this is what makes big things bigger. Sorry, you want to finish? And one stock can change your life. Exactly. You need that one multi-bagger. हाँ, सो वी हैव टू, आपने एक शेयर तो बता दिया इंटरव्यू की शुरुआत में। जैसे जैसे हम ख़त्म कर रहे हैं, आपको एक और तो मैसेज देना है दिवाली का, और ये बताइए कि आगे फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, कैलेंडर ईयर एंड द नेक्स्ट संवत, व्हाट इज द बिगेस्ट थॉट इन योर माइंड? बिगेस्ट थॉट इन योर माइंड, फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? नहीं, बिगेस्ट थॉट मेरे को ये लगता है कि आई एम हैप्पी दैट दिस मार्केट इज करेक्टिंग। मेरे को लगता है कि पैसा जो फेज पीछे गया है, वैसा फेज वापस आने का ये शुरुआत हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये खत्म हो गया है, ये मंदी यहाँ पर खत्म हो गई है, या ये जो भी बेयर रन है या जो भी है खत्म नहीं हो गया है, इसकी शुरुआत हो रही है। आई एम हैप्पी दिस मार्केट हैज फॉलन। आई विल बी हैप्पी दिस मार्केट फॉल्स फर्दर। आई विल बी हैप्पी इफ द स्टॉक्स बिकम, जैसे मैंने बोला कि वैल्यू से भी नीचे अगर आ जाते हैं, बिकॉज बिगेस्ट वेल्थ इन दिस मार्केट has been made when you have invested in a bear market. Be greedy when everybody else is scared. Yeah. तो आपको तो सारे देखे मालूम ही है। जिगर और ये लाइनें नीरज की लाइनें दोनों वॉरेन बफेट से चुराई हुई। Alright, thank you so much Vijay Kedia for coming in, और बहुत ही दिवाली की शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली को, from all of us here at NDTV Profit. Absolute pleasure to have you in our Thank you, ma'am. studios. Thank you. Ace investor Thank you. Vijay Happy Kedia. Diwali. Happy See you Diwali. soon. Yeah.